right? So this is what we did. In step 1, create a class, implemented servlet interface, overrided all the methods. Though it's not required, we just need to worry about 3 methods: init, service, and destroy. Don't worry about these arguments for now. We'll see them. And then after, in second step, we need to configure this servlet into the XML file. That's the first way to create servlet and map it or configure it in web production file. Then after doing this, that's what it looks like. We have XML file and there's this Java file. Then what you can do, just run the server, right click on the project, then run as server, next finish. So server got started. Just a second. Okay, so by default we get this screen, and then how to execute the code. So I have this one, call this and paste and execute. Here we go. So once you execute your code, you can see the screen is blank because we don't have any UI on it. But if you see the log, this console, you can see inside init, inside service, right? And if I execute this code multiple times, like 1, 2, 3, so 3 times extra, that service gets called. So that means if you are running this service multiple times, or that servlet, only service gets called multiple times, because that's where you write the logic, the actual. Okay, that's where we write the actual business logic, and init is just for first time. And what if we want to see this destroy method, right, inside destroy method? So simply stop this server, server gets stop, and terminate. So sometimes we get, sometimes won't, because it's all about the service. So sometimes server shows this message, sometimes won't. So don't worry about that. But sometimes it will print this. That means the destroy was called in front of us, and this message gets printed. Okay, so that's how it works. Let me run this code one more time. Run as on server, next, and finish. Server starting, and then we have a console which shows the starting servlet engine, which is Apache Tomcat, the version, then the jar file, whatever jar file you have in your project, that's getting scanned, and then finally fs, and enter. There it is. 3 4 times, so it is calling only service method. And if we say stop the server, okay, so the server gets stop, and this is what we get from the screen. सर Yes, Finn, सर मैं डिस्ट्रॉय मेथड क्यों नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा? डिस्ट्रॉय मेथड इनिट चल रहा है सर, सर्विस चल रहा है, बट डिस्ट्रॉय मेथड भी तो था एक। हाँ, वो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार रन दिखता है, कई बार नहीं दिखता वो कंसोल पे। ओके सर। ठीक है, तो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कभी वो सर्वर स्टॉप करने पे आ जाता है, कई बार नहीं आता वो, तो अभी नहीं आ रहा। मोस्टली सर्वर स्टॉप करोगे तो दिख जाता है वो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके डिस्ट्रॉय से सर। करना क्या है, डिस्ट्रॉय में कनेक्शन क्लोज होता है वो, मतलब हमें नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि रन नहीं, वो कई बार क्लोज होता है तो वो कॉल हो जाता है वो। डोंट वरी, डिस्ट्रॉय गेट्स कॉल्ड व्हेन यू क्लोज द सर्वर, व्हेन सर्वर गेट्स स्टॉप। तो जैसे सर्वर स्टॉप होगा, तो उसके पहले जितने क्लीन अप टास्क होंगे उस पर्टिकुलर सर्वलेट के, वो क्लोज हो जाएंगे, ये कॉल हो जाएंगे। ठीक है, दिस वाज अबाउट फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, and this was the first way. We have like 3 4 ways to get servlet. So today we'll see by extending std servlet class. Okay, that's for today class. Third way of creating servlet. Okay, so again, this is a class, so steps remain same. First of all, create a Java class. Okay, quite straightforward. Then extend http servlet class. Okay, then you need to override. Okay, override get or post method.
Okay, and then whatever logic you want to do, uh, give the business logic. Set the method. Fine, so let's start with that. So this is the third way. We have three ways to create servlet. First one was creating interface. Second one was generic servlet, which we are not going to do. Third one is by extending HTTP servlet. So what you have to do? Steps are simple. First, we need to create a servlet inside package. Here it is, and yeah, make sure because like Java is kind of a reserved keyword in this server, Apache Tomcat. It treats this Java as a keyword. So that's why when we were using it in the package, it was not executing code. So don't use Java in your package name. Um, so we need to create a class. Right click, new class. I'll say third servlet. Fine, done. Then second step was extends this class HTTP servlet class. There it is, and it is imported from Java Express package. Okay, so before overriding these two methods, see I just mentioned even it's not get, it's do get method, do get and do post. So how exactly this method looks like? So we can do one thing, we can check the source code, right? Like we always do. So we have to open the Oracle site, which will give us the details about this class. So provides, I mean, let's have a look on this first, the class signature. So public abstract class, okay, it's an abstract class. Then extends generic servlet. Okay, I'll give you a flow as well. At the top we have a servlet interface. Then we have oh, generic servlet. Then we have HTTP servlet. Okay, now here custom servlet. So if you notice, there is a pattern. If you create any servlet, you have to suffix it with servlet. Like remember when we were doing exception handling, so every custom exception class goes with exception term. So you have to suffix that exception. Same way, if you're creating your own custom servlet, you have to make sure that you are writing servlet at the end. Okay, so this is the hierarchy. So this extends this, and this implements servlet. Servlet is an interface. This is the hierarchy, just for the sign point. Okay, now we have a class signature. What about the information about it? Let's see what it has. So provides an abstract class to be subclass to create an HTTP servlet suitable for a website. A subclass of HTTP servlet must override at least one method. Okay, so everything's fine. It gives you a abstract stuff, but the condition is you have to override at least one method. So there are like how many methods? One, two, three, four, and four more methods are there. There are total 7 8 methods. So more particularly, if you have heard or learned from somewhere, that you will see there are like get, post, put, delete. These are the four major operations. So provides an abstract class to be subclass to create an HTTP servlet suitable for your website, and oh, it's not happening. And then a subclass of HTTP servlet must override at least one method. So what are these methods? Do get, do post, do put, do delete. And if you heard about these methods, get, put, post, delete, no, no problem. We will do this in Spring Boot in more detail. But for now, that's here from things get started.
कि जो भी आपके मेथड्स हैं उनका टाइप क्या है, रिक्वेस्ट की टाइप क्या है। सो व्हेन वी से रिक्वेस्ट टाइप दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गेट पोस्ट पुट डिलीट। गेट का मतलब डेटा गेट करना, पोस्ट का मतलब डेटा कहीं सेंड करना, पुट अपडेट के लिए, डिलीट तो डिलीट के लिए है। सो कंफ्यूज होते लोग यहाँ पर। गेट का मतलब डेटा गेट करना है, डिलीट का मतलब डिलीट करना है, बट व्हाट अबाउट पोस्ट एंड पुट। सो पोस्ट करता है डेटा इंसर्ट करने के लिए और पुट करता है अपडेट। पुट मीन्स अपडेट, पोस्ट मीन इंसर्ट। तो इसको हम और डिटेल में करेंगे पर यहाँ नहीं, स्प्रिंग बोट में। यहाँ के लिए भी फिलहाल ये है कि क्लास है HTTP सर्वलेट, और अगर आपको अपनी खुद की सर्वलेट क्लास बनानी है सो मेक श्योर यू आर एक्सटेंडिंग दिस क्लास एंड ओवरराइडिंग एटलीस्ट वन मेथड। इट सेज एटलीस्ट वन मेथड। सो कोई भी एक मेथड आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। सो मेजरली वी प्रेफर इधर डू गेट और डू पोस्ट, इनमें से कोई एक पिक करते हैं। वो भी रिक्वायरमेंट बेस पे करते हैं, ऐसे नहीं कोई भी सर कर लिया। रिक्वायरमेंट बेस पे करते हैं। यस। सर एक बार इसे जो सर्वलेट जेनेरिक सर्वलेट एक बार अगेन रिपीट कर दे जो है। ये इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया मैंने कि हायरार्की क्या होती है। आपने अपनी कोई मतलब कस्टम क्लास बनाई तो आप एक्सटेंड कर रहे हो HTTP सर्वलेट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है HTTP सर्वलेट, ये एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट को, और ये सर्वलेट करता है इसको एक्सटेंड। तो टॉप में हमारा सर्वलेट इंटरफेस है जो कि रूट इंटरफेस भी है। तो ये एक हायरार्की एक्सप्लेन किया मैंने, इनहेरिटेंस कह सकते हो इसे कि सर इनमें हाँ। होता क्या मतलब जेनेरिक सर्वलेट के इसमें मतलब इन्हें जब हम इनहेरिट करेंगे तो। फीचर्स मिलेंगे आपको और हायरार्की, और बताता हूँ। सर्वलेट में तो आपको 5 मेथड्स मिल गए, राइट, जो कि यस सर। लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। वो तो कॉल होंगे होंगे, प्लस अब आपको और फीचर्स चाहिए क्योंकि इंटरफेस से काम नहीं बन रहा, आपको और फीचर्स चाहिए। जेनरिक सर्वलेट तो ये सपोर्ट करता है कुछ प्रोटोकॉल्स, जैसे कि FTP हो गया। मैं पे तो इसमें दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो जो प्रोटोकॉल्स है मोस्टली कुछ ऐसे जेनरिक सर्वलेट ही क्लास सपोर्ट करता है। अब इसको करने से बता देता हूँ मैं। Yeah, defines a generic protocol independent servlet. To write an HTTP servlet for this, use ये तो ये वाला हो गया। Um, it's more common to extend a protocol specific subclass such as HTTP servlet. Generic servlet makes writing class servlets easier. It provides simple version of lifecycle methods init and destroy. Also implements log method declares in servlet context interface. अभी यहाँ तक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास को पढ़ाता नहीं हूँ। हालांकि क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ प्रोटोकॉल बेस्ड रिक्वेस्ट चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है, मैंने कल बताया था प्रोटोकॉल क्या होता है, जो पढ़ने के लिए दिया था मैंने। पढ़ा होगा समझ में आएगा मेरी बात, वरना सब ऊपर चल जाएगा। होमवर्क मस्ट है, वरना मैं चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला। अगर आप लोगों ने पढ़ोगे तो फायदा नहीं है इस क्लास का। तो अगर होमवर्क करा होगा तो प्रोटोकॉल समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक अगर सबलेट लिखनी है तो इसमें जाएंगे। पर अगर कंडीशन ये रहेगी कि अब 99.9% हम लोग HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे लग रहा है किसी को सर भी। प्रोटोकॉल दैट एड्रेस आई थिंक एड्रेस, किसका एड्रेस? जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वैसे प्रोटोकॉल से किसी एड्रेस ही तो है जैसे। ये प्रोटोकॉल्स हैं, इधर देखो ये सब। लेयर्स के ऊपर। तो ये जितने प्रोटोकॉल्स हैं इनमें से कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे बनाना है कि FTP आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप जनरल सर्वलेट यूज़ कर लोगे, कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल ही ट्रांसफर करनी है। एक और सर्वलेट बनाना है जिसमें आपको मेल ट्रांसफर करना है, मेल सेंड करना है वन एंड टू एंड, तो आप जनरल सर्वलेट बनाओगे। एस हाँ, एम टी पी तो सर। SMTP के लिए यूज़ करेंगे उसे। तो ऐसे प्रोटोकॉल स्पेसिफिक लिखने के लिए हम जनरल सर्वलेट क्लास यूज़ करते हैं, उसमें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि अब 99.9% हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, यही चलता है अब। तो इस वजह से जेनरिक सर्वलेट खत्म हो चुका है अब आप HTTP प्रोटोकॉल में सारे प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हो। क्लासेस है बहुत सारी, ओवरराइड करो मेथड्स को, और उनके अंदर जो कंटेंट है उसको ओवरराइड कर दो अपने हिसाब से। ठीक है। तो जेनरिक सर्वलेट तब आएगा जब आपको प्रोटोकॉल स्पेसिफिक सर्वलेट लिखना है, जो कि आप कभी लिखने नहीं वाले, जरूरत नहीं पड़ने वाली इन शॉर्ट। इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी HTTP सर्वलेट की, क्योंकि यही यूज़ हो रहा है आजकल। आप स्प्रिंग बूट खोल लो, गेट पोस्ट पुट डिलीट, इसके अलावा कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा होगा प्रोजेक्ट में। दो चार पैच के कॉल हो जाएंगे तो वो जरूर हो जाएंगे, पाँच छः दो और एक्स्ट्रा कॉल्स हैं, पर जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कॉल लिखनी है तो जनरल सर्वलेट पे। तो सर्वलेट में तो सिर्फ बेसिक कॉल था कि इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट करा और मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे यस प्रोटोकॉल सर। स्पेसिफिक सर्वलेट बन गया। अब उसके बाद फीचर ऐड किया गया कि ठीक है यार ये स्पेसिफिक हो गया, इतना किसी डेवलपर के पास टाइम नहीं है कि वो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक क्लास लिखे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम HTTP सर्वलेट बनाते हैं। इस प्रोटोकॉल के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी कॉल हो सकते हैं, क्लासेस को यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो डू गेट डू पोस्ट का काम हो रहा है, उसके अंदर ही क्लासेस कॉल करो जो सर्वलेट पे प्रोवाइड करता है और यूज़ करो। अब खुद के सर्वलेट बनाना है तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारा बिजनेस कुछ और चाह रहा है। पर बनाना पर हमको बनाना ही वेब पेज है। तो एक क्लास बनाओ और एक्सटेंड कर लो उस क्लास को, और इनमें से कोई एक मेथड पिक कर लो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
उसको ओवरराइट करो और कोड चलाओ। ठीक है। हेलो यस मनन। सर, बेसिकली एचटीटीपी सर्वलेट क्लास जो है वो सारे बेसिक फंक्शंस हमें दे दिया था। हाँ, क्योंकि हायरार्की में सबसे नीचे ही है, तो ये तो चाइल्ड क्लास हो गया, तो उसके पास सब कुछ होगा, जो फीचर ऊपर से आ रहे हैं सब इसके पास होगा। और आपने खुद की क्लास बना ली, तो खुद के लॉजिक प्लस इन ये तीनों फीचर जो ऊपर रखे हुए हैं सब आ जाएंगे आपके पास। इनहेरिटेंस का ये तो फायदा है ना। सर बेसिकली जेनरिक सर्वलेट में फिर हो क्या रहा है, मतलब अगर हमें प्रोटोकॉल पेज बनाना भी है हम्म। तो हमें जरूरत क्या पड़ी, मतलब जेनरिक सर्वलेट की मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डाउट हो हाँ, रहा है यहाँ पे। जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट को फिर अलग अलग करने की जरूरत क्या पड़ी? हम आपने ओवरराइट तो एक ही इसमें भी कर अच्छा ये सकते बताओ पहले, आपने कितना पढ़ के आए हो? जो मैंने कल टास्क दिए थे सारे पढ़ के आए हो? हैं। सब प्रोटोकॉल्स वगैरह मुझे पता है सर। अच्छा रुको, पहले होमवर्क को लेते जरा। पहले होमवर्क क्लियर करो, तब मैं इसमें जरूर डिस्कस करूंगा। अ, एक तो ये था ना इसमें, कोड रन हो गया आपके सिस्टम पे, कोई इशू तो नहीं हुआ उस पे? सब रन हो गया मनन? हेलो सर्वलेट का एग्जाम्पल रन हो गया? सर, अभी ट्राई नहीं कर पाया हूँ। तो यार पढ़ के तो आए नहीं आप, फिर समझ के क्यों नहीं आ रहा आपको? पढ़ो तो पहले। बिना पढ़े आपकी क्लास में क्वेश्चन पुट अप करोगे, ऐसे नहीं चल पाएगा ना। सर प्रोटोकॉल्स तो आई नो, मतलब प्रोटोकॉल्स क्या हाँ, होते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, बट तो मैंने मुझे आपको बस यही समझ नहीं आया कि जो अलग अलग बताओ। क्लास करने की जरूरत क्या पड़ी है। वो एक ही क्लास से सारा काम हो सकता था ना। फिर तो आप वो कह रहे हो कि आप एक ही क्लास में सारे लॉजिक लिख दो। इतने बड़े प्रोजेक्ट में मल्टीपल जावा फाइल्स की जरूरत ही क्या है? थिंक। आप कह रहे हो कि मैं एक ही क्लास में सारे लॉजिक लिख देता हूँ मैं। क्लास छोड़ो, मैं तो एक ही मेथड में सारे लॉजिक लिख देता हूँ। क्यों 50 जगह अपना कोड लिखना? हमें चाहिए क्लास के अंदर कि एक बार लिखने के बाद वो मल्टीपल टाइम यूज किया। अब सोचो आपने जो एक मेथड लिख दिया या आपने एक क्लास बना दी, उसके अंदर आपने बोल दिया कि मैं इस क्लास के अंदर सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। मतलब आपको चाहिए होगा सिर्फ एफ टी पी प्रोटोकॉल, और उसके लिए आप एक पूरी क्लास का इनहेरिटेंस बना के दे रहे हो। मतलब जो मेथड्स आपको नहीं चाहिए वो भी आपको मिल रहे हैं। जब आपकी क्लास कंपाइल होगी तो सारे मेथड उसके अंदर जाएंगे। अभी आप लोगों को कंपाइलेशन का आइडिया नहीं है कि जब एक क्लास कंपाइल होती है तो उसकी पूरी इनहेरिटेंस कि वो टॉप तक कितनी हायरार्की जा रही है, सारी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या आपको आइडिया इस चीज़ का? उसी तरह जितने मेथड्स हैं वो सारे बाइंड भी होंगे रन टाइम पर। अब आपको चाहिए सिर्फ एफ और आपने क्या किया, 50 मेथड उसके संग लगा के भेज दिए। तो कितना ओवरहेड लेगा जेवीएम ये समझने के। ओके, मेरे पास है तो 50 मेथड, पर मुझे काम सिर्फ एफ प्रोटोकॉल से है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने टास्क को सेग्रीगेट करते हैं। प्रोटोकॉल हमारे पास बहुत सारे हैं, जितने जितने रिक्वायरमेंट उतने बेस पर हमने प्रोटोकॉल को डिफाइन करके रखे हैं कि इस प्रोटोकॉल पे ये काम होगा। तो जब जेनरिक सेलेक्ट हुआ तो उसने तो नाम ही लिखा हुआ है जेनरिक। जेनरिक मीन्स वो सबके संग कंफर्टेबल है वो। उसमें प्रोटोकॉल स्पेसिफिक आप सर्वलेट क्लास लिख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुझे फाइल ट्रांसफर का काम लिखना है तो मैं जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करूंगा और उसमें लॉजिक लिख दूंगा फाइल ट्रांसफर का। तो वो बेसिक फंक्शनलिटी जो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर है वो मुझे मिल जाएगी इस इनहेरिटेंस के थ्रू। यहाँ पर यहाँ से मिल जाएगी बेसिक, कि मैं इनर सर्विस डिस्ट्रॉय के अंदर जो लॉजिक है वो लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे कर दूंगा उसको खत्म। ठीक है सर। इस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद जो लॉजिक, ऐसा नहीं है कि जेनरिक सर्वलेट आपको बोल देगा कि ये लो कोड और एफ का कोड चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये इस क्लासेस सिर्फ आपको एक स्केलेटन दे रहे हैं। अच्छा एक काम करो, देखो मैं तुम्हें इसमें इसको करो बंद। यहाँ पर ये हमने खोल रखा है जेनरिक सर्वलेट क्लास, इसमें जरा एक बार चेक करो, मेथड चेक करो। डिस्ट्रॉय आ गया, गेट इन पैराम आ गया, कॉन्फ़िग आ गया, सर्वलेट कॉन्फ़िग इनिट, ये रहा इनिट मेथड, ये इसका इनिट मेथड। लॉग्स हैं और सर्विस मेथड कॉल्ड बाय द सर्वलेट कंटेनर टू अलाउ द सर्वलेट टू रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट। अब इसमें कोई ऐसा मत लिखा है कि या तुम इसमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल स्पेसिफिक काम कर सकते हो। ये डिज़ाइन पैटर्न्स का पार्ट होते हैं मनन। जब हम डिज़ाइन कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। कि अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली लिखा क्या है कि इवन जो एक कंस्ट्रक्टर है, इन्होंने कंस्ट्रक्टर पे ब्लैक छोड़ के रखा हुआ है, लिखा क्या है, डज नथिंग ऑल सर्वलेट इनिशियलाइजेशन डन बाय वन ऑफ द इन इट मेथड्स। तो थिंक अबाउट, अभी तक हमने जो क्लास पढ़ी थी जावा क्लासेस, उसमें क्या लिखा था कि हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टर है तो वो डेटा इनिशियलाइजेशन, क्लास का ऑब्जेक्ट सब वो क्रिएट करेगा। पर जैसे हम वेब टेक्नोलॉजी पे आए हमने देखा कंस्ट्रक्टर काम ही खत्म हो गया। बट स्टिल दैट कंस्ट्रक्टर इज देयर कि इन केस अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में वैल्यूज या फीचर्स ऐड करने हैं तब सर्वलेट यूज करते हैं। पर इनिशियली ये कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करता, बस है वहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी के जितने मेथड्स हैं उसमें आपको कहीं लिखा कि मैं इस प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक मेथड्स बना रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत जेनरिक लिख रखे हैं कि अगर कोई फीचर ऐड करना है
मैं लिखा FTP सर्वलेट एक्सटेंड जेनरिक सर्वलेट, और जो बेसिक फीचर है इसमें देखो कोई भी HTTP स्पेसिफिक नहीं है, इसमें कोई भी लिखा हुआ कि ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है, ये जेनरिक है। ऐसे समझो, जेनरिक की दवाई होती है ना, जेनरिक मेडिसिन होते हैं, वो काम करते हैं वो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, या कोई भी कंडीशन हेल्थ हेल्थ के लिए रिलेटेड। यहाँ पे भी इसका काम ये है कि एक सर्वलेट बना, मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्वलेट चाहिए, लॉजिक में खुद लिख दूंगा कहाँ पर, इस सर्विस मेथड में। ये आपको फीचर नहीं देने वाला, ये आपको स्पेस दे रहा है कि मुझे एक क्लास बनानी है जिसमें कुछ मेथड्स ऑलरेडी हों जिनको मैं यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा कि भाई तू इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय और बाकी के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उनको तुम्हें ओवर करना है, ऐसे को तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला जो कि सर्वलेट में होता है। तो विदाउट डूइंग दैट जो भी आपको एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है वो आप इसमें कर सकते हो। पर जैसे एच टी टी सर्वलेट पे आया तो ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक क्लास आ गई। एच टी टी पी एक प्रोटोकॉल ही है, एच टी टी पी। दैट मीन्स अब मैं कोई सर्वलेट बनाऊंगा और उस सर्वलेट के थ्रू मैं एच टी टी सर्वलेट एक्सटेंड करूंगा, तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, एच टी टी पी के थ्रू जाएगी। और जैसे मैंने कहा 99.9% अब एच टी टी पी ही चलता है। पॉइंट वन की छोड़ रहा हूँ क्योंकि कंडीशंस हैं, कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट कुछ और भी हो सकती है। मे बी किसी लेगेसी सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो वहाँ पे आपका एच टी टी पी न चले, मे बी वो पुराने सिस्टम में काम कर रहा हो, तो उस केस में फिर आपको कुछ और कंडीशंस या फिर रिक्वायरमेंट ऐड करनी पड़ेगी। पर जनरिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरिक, मतलब एक सर्वलेट बनाना है, लॉजिक आपके रहेंगे, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है ये कि इसी प्रोटोकॉल पे काम करेगा। ये कहते हैं प्रोटोकॉल लेस या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइंस अ जेनरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट, दैट्स इट। मन बताइए, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझ इसको, यस यहाँ सर, है सब ना। समझ आ गया। यहाँ पे सबलेट बनेगा विदाउट लॉजिक, आपको लॉजिक डालने पड़ेंगे, अब जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप अपना सबलेट बनाएंगे। ठीक, ओके। तो और यार, काम खत्म करके आओ, ऐसे नहीं चलेगा। मैं फिर क्लासेस बंद कर दूंगा, मना कर दूंगा सर को कि पहले इनको बोलिए क्लास खत्म करके आए। टाइम नहीं तो फिर क्लास में मत अटेंड करिए, ये सबके लिए ये होमवर्क है तो खत्म करो उसको, ऐसे मत आ जाओ। रीज़न अपने पास रखिए, मुझे चाहिए अब काम। 3 हफ्ता हो चुका है, दैट मीन्स नो, कुछ भी इसमें अलाउ करूँगा मैं। ओके, तो हमने क्लास अटेंड कर लिया। अब ओवरराइट करना है डू गेट और डू पोस्ट। मैंने यहाँ नहीं लिखा कि डू पुट या डू डिलीट, मैंने स्पेसिफिक लिखा है कोई भी एक मेथड ओवरराइट कर लो, क्योंकि सर्वलेट्स में मोस्टली हम इन्हीं मेथड्स पे काम करते हैं। डू गेट डू पोस्ट पे अपडेट डिलीट ठीक है, मेथड्स होते हैं, पर अगेन इनके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखा हुआ कि मैं डू गेट लगा दूंगा तो डेटा गेट होना शुरू हो जाएगा, या मैं डू डिलीट लगा दूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, लॉजिक हमें लिखना है। ये तो बस एक है कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। नाउ लेट्स सी वन थिंग। अभी इस पे जाते हैं और डू गेट चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको मेथड सिग्नेचर शो करना चाह रहा हूँ, इसको मैं ये देख लेते हैं इसको। डू गेट, ये रहा इसका मेथड सिग्नेचर। लेट्स ओपन न्यू पेंट। एंड डू पोस्ट, डू पोस्ट देयर इट इज। हालांकि सारे मेथड्स के सिग्नेचर ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस आपको कुछ दिखेगा नहीं, एक्सेप्ट द नेम एवरीथिंग इज सेम, एक्सेप्शन रिलेटेड सिग्नेचर सब कुछ सेम है। ओनली डिफरेंस इज द नेम, सब कुछ सेम है। पब प्रोटेक्टेड मेथड है डू गेट डू पोस्ट, और आर्ग्यूमेंट है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और ये इसके सिग्नेचर। तो मेरे पास दोनों मेथड आ गए, ये सिग्नेचर्स आ गए, तो मैं फिलहाल दोनों यूज़ कर लेता हूँ, पर यूज़ एट टाइम एक ही करना है। तो थर्ड स्टेप वॉज कि ओवरराइट करना है इन मेथड्स को, किसी एक मेथड को, तो मैं इसमें से पोस्ट को भी कमेंट कर देता हूँ, और इन क्लासेस को, क्लास नहीं इंटरफेस है बाय द वे, HTTP servlet request and HTTP servlet response both are interfaces। एंड चलो सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डन। सो वी हैव अ मेथड एंड लेट्स मेक इट पब्लिक। हमारा मेथड है, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो वी हैव अ पब्लिक void do get टू आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्रोज दिस। अभी लॉजिक हमारे पास कुछ है नहीं, तो लेट्स डू अ सिंपल सिस आउट सर इनसाइड डू गेट मेथड। यस विपिन।
आई थिंक सही नहीं, कोई नोट पैड पे बनाना चाहे तो उसे तो वाट लग जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल लग जाएगी। इनिशियली, इसे इतना याद करना। अरे पता है अभी तो सी, वी आर यूजिंग इक्लिप्स, तो सब कुछ इसे मैनेज कर लिया। जब मैंने इसको पढ़ा था सबरेट को, है ना, मैं ऑलमोस्ट नौ नौ दस यस साल सर। पुरानी बता रहा हूँ मैं। उस टाइम ये टूल्स यूज़ नहीं करवाया था ट्रेनर ने हमारे। उसने कहा था कि नोटपैड खोलो। उसने पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिया कि ऐसे बनाओ, डायरेक्टरी होगी, पहले प्रोजेक्ट का नाम, फिर उसके अंदर ये एस आर सी ये करके। उसमें खुद से हमने एक्सएमएल फाइल बनाई थी, सब टाइप किया था, तब सबमिट किया गया था ये। और अब तो बहुत चीज़ आसान है, सोचो अगर वैसे पढ़ाने बैठे तो मैं तो इंट्रोडक्शन ही 7 दिन में खत्म होगा, 1 हफ्ते में। और समझ भी नहीं आएगा फिर हो क्या गया। तो यस सर। क्योंकि वहाँ सब कुछ टाइप करो, दैट मीन्स कि एक छोटा स्लाइस स्पेस गया किसी के अंदर तो गया खत्म, है ना। पर खैर, टाइम बचाने के लिए इसलिए एडिटर ऐड किए गए कि ऑन द फ्लाई सब कुछ क्रिएट कर लो। तो हमने फाइनली एक सर्वलेट बना लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अब इसको मैप करना पड़ेगा। तो मैप के लिए क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू गो टू वेब प्रोडक्शन फाइल। यहाँ पर जो ऑलरेडी मैपिंग है इसको यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं सी गाइस, हम सेविंग माई टाइम, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पर आप लोग ट्राई करिएगा खुद से टाइप करने का, सब कुछ खुद से टाइप करो। अपने पास टाइम नहीं कि सब टाइप करा जाए, टाइम से वेस्ट हो जाएगा। तो मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। क्या करना है, पहला काम, जो भी सर्वलेट का नेम है वो एक यूनिक देना है। तो ट्राई करिए कि आपके क्लासेस का नाम यूनिक हो। इवन अगर 10 पैकेज हैं तो भी आपके क्लासेस का नाम डिफरेंट हो, ताकि यहाँ पे मैपिंग प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखना है। सो गुड ऑप्शन इज़ कि जो भी क्लास का नाम है वो यहाँ लिख दो, और फिर सेम को यहाँ करना है। आपको यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम देना है सर्वलेट का। क्रॉस चेक कैसे करना है, होल्ड द कंट्रोल बटन एंड होवर द माउस, सो इट बिकम्स अ हाइपरलिंक, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस इट विल टेक यू टू द क्लास। देयर इट इज। ठीक है। और अब इसको मैं टी एस कर देता हूँ, थर्ड सर्वलेट। डन, मैपिंग इज डन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे यूआरएल पे जाकर टी एस लिख दूँ तो मेरा ये सर्वलेट कॉल होना चाहिए। थिंक अबाउट कि हम एक्चुअली एक जावा क्लास कॉल कर रहे हैं, वो भी वेब के थ्रू, वेब पेज के थ्रू। तो ट्राई करते हैं, राइट क्लिक, रन एज सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, सर्वर स्टार्टिंग। ठीक है, ब्लैंक पेज है, अभी इसको सेट करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों आता है ये 404, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कुछ है नहीं, रूट पेज अपना है ही नहीं। पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है कुछ 11 मिली सेकेंड्स में। ओके, अब मैं पहले पहला सर्वलेट चलाता हूँ, एफ एस फर्स्ट सर्वलेट। एंटर किया, कॉल हो गया, ओके, ब्लैंक स्क्रीन है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर टी एस, और इसको करते हैं क्लियर, बटन प्रेस किया एंड हियर वी गो, इनसाइड डू गेट मेथड। तो अब मैं वेब पेज के थ्रू कर सकता हूँ ये। इसकी बात नहीं, आप अपने ब्राउजर पे चला सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इसमें चल पाएगा। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, और कंसोल करता हूँ क्लियर। ठीक है। अब इसको करते हैं रिक्वेस्ट, यहाँ पे कंसोल पे आएगा वैल्यू, आ गया, वेब पेज ब्लैंक हो गया, है ना। तो अभी अपने पास कुछ यूआई के लिए है ही नहीं, तो ये ब्लैंक आ रहा है। पर जावा कोड में कुछ बैकएंड मैसेज कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ प्रिंट हो गया। सो पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरनल ब्राउजर यूज़ मत करना अभी, इनिशियली 1-2 पेज के लिए ठीक है। पर जैसे थोड़ा सा आप 2-4 पेज एक्स्ट्रा करोगे, ब्राउजर, इसमें आपको यूआई नहीं दिखती कई बार, जो भी आप सीएसएस या एचटीएमएल टैग लिखोगे, कई बार वो सही से दिखते नहीं है। इवन हेडर टैग भी ऐड करोगे तो नहीं दिखता वो। तो बेटर है इसको ना यूज़ करो। अपना पास ब्राउज़र है, मॉडर्न ब्राउज़र है, तो वो सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना हो, लेट सपोज मुझे इसको ब्रॉड करना है। मैंने कहा था कि सर्वलेट का सबसे खास बात क्या थी, कि इसमें आप जावा कोड के अंदर एचटीएमएल टैग लिख सकते हो, है ना। तो ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे एक h1 टैग डाल रहा हूँ, हेडर टैग, और यहाँ पे h1 टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फाइल सेव कर दिया। लेट्स वेट फॉर अ फाइल। जैसे ही फाइल सेव होती है आपकी, तो सर्वर उसको डिटेक्ट करता है और आपके प्रोजेक्ट को रिलोड करता है। देखो, डिस्ट्रॉय आ गया, देखो। विपिन, आपको कुछ ना डिस्ट्रॉय नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर ने आपके प्रोजेक्ट को स्टॉप करा, सॉरी यस सर। अनडिप्लॉय करा। जैसे प्रोजेक्ट अनडिप्लॉय हुआ तो डिस्ट्रॉय कॉल करा उसने, और फिर वापस कर दिया उसने रिलोड। और क्या लिखा है पढ़िए, रिलोडिंग द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट नाम एक्चुअली क्या होता है, प्रोजेक्ट का नाम, है यस ना। सर। तो इनेट कॉल हो गया। अब इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं वेब पेज पे कुछ मैसेज आता है क्या। वो वेब पेज तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सिसआउट का मैसेज है, ये चलेगा नहीं। बस आपको बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे h1 टैग एज रेज आ गया। तो ये ऐसे नहीं कि सिसआउट को डाल दिया और प्रिंट हो जाएगा, उसके लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है।
तो थोड़ी देर बाद हम जो इंटरेक्ट करेंगे वेब पेज से तब समझ आएगा। अभी हम वेब पेज पे कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सारा कुछ देख रहे हैं कि हम कॉल कैसे करते हैं। तो कॉलिंग में कुछ डाउट है या कोई भी क्वेरी है, पूछ लीजिए आप लोग। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन जो भी दिमाग में आ रहा हो पूछ सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि लिंक कैसे हो रहे हैं ये। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू रन योर कोड थ्रू अ सर्वर, व्हेन आई से राइट क्लिक, रन एज सर्वर। सो सर्वर आपके प्रोजेक्ट को लोड करता है। अपाचे टॉमकैट कर रहा है काम। जैसे ही लोड करेगा, पहला काम सर्वलेट क्या करता है, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल कहते हैं। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो इसको रीड करेगा और जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सब रीड करेगा। तो जितने भी सर्वलेट आपके ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके होंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए तभी आपका सर्वलेट कॉल हो पाएगा। तो जैसे कॉल हुआ तो डेट मीन्स थर्ड सर्वलेट रजिस्टर हो गया। अब इसमें यूआरएल पैटर्न क्या हमारा, टीएस, ये वाला यस। है ना। टीएस, ये टीएस हमने यहाँ देकर रखा हुआ है। तो जैसे इस पे कॉल हुआ तो ये नंबर 1 है, रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, देन रिक्वेस्ट यहाँ पे गई नंबर 2, फिर थर्ड सबलेट पे आएगा जो इसका सबलेट का नाम है। उसके बाद सर्वर चेक करेगा कि ये जो मैपिंग है, इसमें एक सबलेट का नाम है थर्ड सबलेट, तो इस फाइल में थर्ड सबलेट की मैपिंग कहाँ पर है, तो ये जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और फाइनली जब फोर्थ मैच हो गया, फिर बोलेगा ओके मुझे मैपिंग मिल गई है, मैचिंग मिल गई सॉरी, तो अब मुझे इस क्लास को लोड करना है जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है। इसलिए हमें फुली क्वालिफाइड नाम देना होता है ताकि उस क्लास को लोड कर सके विद पैकेज नेम। अगर सिर्फ नाम दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कौन से पैकेज में। दैट्स व्हाई वी टेंड टू गिव फुली क्वालिफाइड नेम। ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस। अब जैसी क्लास लोड हुआ तो आपके पास जो एक क्लास थी कॉल हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा होगा उसने, तो आपको ऑब्जेक्ट बनानी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा हम कहीं पे ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे, कहीं पे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ये रन टाइम पे चीज़ें बनाता है एज पर द रिक्वेस्ट। फिर ये क्लास लोड हो जाएगा और इसमें जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 6 स्टेप। तो कुछ इस तरह सीक्वेंस इसका चलता है। कंसोल पे ऐसे दिखेगा मैसेज। सर एक बार अगेन रिपीट करेंगे ये एक्सएमएल वाला पार्ट, जैसे मतलब कैसे कॉल कर रहा था। एक मिनट। ओके। ठीक है। तो क्या होता है कि हमने करा राइट क्लिक, रन एज और सर्वर। जैसे इस पर क्लिक किया टॉमकैट सर्वर एक्टिवेट होता है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सर्वर पे लोड करता है। जब ये लोडिंग चल रही होगी जिसको कहते हैं बूटिंग, प्रोजेक्ट को बूट हो रहा है, तो बूट टाइम पे ये इस प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट है, मेन फाइल इसकी यही है। प्रोजेक्ट सबसे पहले इसको टॉमकैट ही कॉन्फ़िगर्ड है कि जैसी कोई भी सर्वलेट का एप्लीकेशन उस पर लोड हो या कोई भी वेब एप्लीकेशन लोड हो तो वो वेब डॉट एक्सएमएल पिक करता है। बाय डिफॉल्ट उसमें कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस फाइल को लोड करेगा और जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशंस है सर्वलेट की उन सबको रजिस्टर कर लेगा कि ये सर्वलेट है, ये रजिस्टर हो चुके हैं। जब भी रिक्वेस्ट आएगी मैं उसका यूआरएल पैटर्न मैच करूंगा और पर्टिकुलर सर्वलेट को लोड कर दूंगा। तो हमारे सिनेरियो में हमने टी एस रिक्वेस्ट करा। यस। सर ये जो यूआरएल पैटर्न आपने लिखा है, हम्म। ये कहाँ से है? मतलब टीएस मतलब किधर था? मैं कहाँ तक खुद से लिखा है टीएस मैंने तो ये, मतलब सोच के लिखो। ये लिख लो आप। मतलब ये हम खुद से लिख सकते हैं, टीएस यस। और एफएस यहाँ पे है? खुद भी लिख कुछ भी लिख सकती है। ओके सर। विपिन लिख लो भाई, विपिन चल जाएगा इसमें। ठीक है। इशू ये की है कि वेब एक्सेल को जब सेव करते तो सर्वर्स को डिटेक्ट नहीं करता, तो आपको सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। अब हम विपिन चला देते हैं। कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। इवन जो सबलेट का नाम है वो भी आप खुद से लिख सकते हो, पर ये बस एक लाइन जो फिक्स है वो ये है, फुली क्वालिफाइड नेम। और और ये जो सर्वर का नाम रहेगा वो सेम क्लास के नाम, कौन क्लास, कौन सा होगा नाम। ये जो थर्ड सर्वलेट। हाँ ये कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ कस्टमाइजेबल है। हो गया कॉल, देखो विपिन को कॉल हो गया। तो जो लिखना है लिखो, चल जाएगा। पर ये यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट योर एक्सएमएल। अब अगर मैंने सेम नाम लिख दिया तो कंफ्यूज जाएगा ना कि किसको कॉल करना है, यस सर। तो इसलिए हम यूनिक नाम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो उसके बाद
रिक्वेस्ट में गया TS, इसने चेक करा प्रोजेक्ट ने, सॉरी सर्वर ने, कि प्रोजेक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है उसमें TS कहाँ पर है, तो TS लोड हुआ। TS के अकॉर्डिंग ये नाम सर्वर चेक करेगा कि थर्ड सर्वलेट कहाँ लिखा हुआ है, वो यहाँ पर है। फोर्थ स्टेप, फिर नाम मैच होती जो भी क्लास उसके अंडरलाइन है उसको लोड कर देगा। लोड हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसका रन टाइम पर, और डू गेट अपने आप कॉल कर देगा। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि थर्ड सर्वलेट का इंस्टेंस बनाओ फिर डू गेट मेथड कॉल करो, ये काम सर्वर खुद कर सकता है। उसके बाद क्या, बस जो भी आपके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है मेथड के अंदर ओके वो सर। रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक था सर, समझ आ बिल्कुल गया। बेसिक तरीका कि सर्वलेट कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं। खुशबू, कुछ इसमें समझ में आया? आपने फर्स्ट क्लास की वीडियो देखी? सर अभी फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आपकी। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप टाइम यूटिलाइज करिए, चाहे तो मैम से बात करिए, पर ये आपको ख़त्म करना है। ठीक है, ये क्लास दोबारा नहीं होने वाली आपकी, आप इस क्लास में हो तो ये पैरेलल चलने वाला है, कोड जावा प्लस ये। ठीक है, पता है ना आपको ये बात? तो यस सर। सीरियसली जितनी क्लासेस जो अभी एक क्लास हो चुकी है प्लस ये, फोकस से काम करिएगा, इनको ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है guys, तो सेकेंड ये हो गया। थर्ड में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस पेज। यहाँ पे अभी और चीज़ें हमको समझनी है इसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जब भी हम प्रोजेक्ट लोड कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर चल रहा है अभी, चल रहा है, तो हमें ये ब्लैक स्क्रीन मिलती है, ब्लैंक स्क्रीन विच सेज 404 नोट फाउंड। क्योंकि जब सर्वर लोड हुआ तो वो चेक करता है कोई डिफ़ॉल्ट पेज मिल जाए। अब डिफ़ॉल्ट पेज क्या होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पेज है। ठीक है, हाँ बताओ विपिन, कौन सा इसमें से? इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज। टॉमकैट सर्वर इज कॉन्फ़िगर टू रीड और लोड द इंडेक्स पेज। अब इंडेक्स HTML हो सकता है, इंडेक्स JSP हो सकता है। तो हमारे इस करंट प्रोजेक्ट में इंडेक्स फाइल है ही नहीं, है ना? तो मैं क्या करूँगा, ये सीक्वेंस है गाइस, वेलकम फाइल लिस्ट एक टैग है जो बताता है कि इस सीक्वेंस में वेलकम फाइल सर्वलेट, सॉरी नॉट सर्वलेट, सर्वर, टॉमकैट सर्वर विल सर्च आउट, कि आपके पास इनमें से कोई भी एक फाइल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर होगा तो रीड करेगा। टॉमकैट विल ट्राई टू रीड these files from the project। मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज 404 आ जाएगा। अप्रोच विल बी टॉप टू बॉटम, है ना? सेम ऐसे जावा काम करती है, टॉप टू बॉटम कोड इसका अप्रोच करते हैं, टॉप टू बॉटम और डाउन। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ व्हाट इफ वी ऐड दिस फाइल, सो व्हाट विल हैपन? सो वो ट्राई करते हैं हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे एक फाइल को हम HTML फाइल में क्रिएट करना सिंपल। सो कहाँ क्रिएट करेंगे विपिन, एनी आइडिया? HTML फाइल क्रिएट करनी है इनसाइड विच अगेन फोल्डर? रिपीट सर, क्या क्या आपने पूछा? इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट करनी है, किस लोकेशन पर करेंगे? SRC सर में? वेब डॉट आई एन एफ के पैरेलल हम इसे क्रिएट कर लेंगे, मतलब वेब कंटेंट में इसे हाँ, क्रिएट करेंगे। वेब कंटेंट बोल दो सीधा, वेब कंटेंट के अंदर। तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द वेब कंटेंट, देन न्यू, एंड देन यू टू पिक ऑप्शन, कौन एच से टी में एम है, एल फाइल। है ना? अगर यहाँ नहीं है तो अदर पे क्लिक करो और टाइप कर दो HTML, आ गया। नेक्स्ट, हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, तो हम इंडेक्स डॉट HTML और फिनिश कर दो, ये आ गया। अभी के लिए हम सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं, हेलो फ्रॉम इंडेक्स डॉट HTML पेज, ख़त्म काम। अब सर्वर को लोड, क्योंकि हमने एक नया पेज ऐड किया है, सो इट्स बेटर कि सर्वर को रिस्टार्ट करें, तो हमेशा सर्वर को क्लोज करें, वरना कई बार पुराना डेटा दिखता है, फिर आप कंफ्यूज हो कि मैंने तो फाइल ऐड कर दी पर वो शो नहीं हो रही है, और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी कोई नया फाइल ऐड करो, मेक श्योर यू आर स्टॉपिंग द सर्वर एंड रीस्टार्टिंग इट। सो बेस्ट वे स्टॉप करो मैनुअली, उसको रीस्टार्ट मत करना, कई बार रीस्टार्ट में दिक्कत होती है। इक्लिप्स में काफ़ी बग आते हैं जब आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द सर्वर, देन रन एज एप्लीकेशन ऑन द वेब, सर्वर रन कर रहा है, एंड इफ एवरीथिंग वाज फाइन वी शुड गेट दिस मैसेज ऑन स्क्रीन। अब वो 404 नहीं देगा, अब देखेगा हेलो फ्रॉम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज।
ओके, देयर इट इज। सो नाउ वी हैव अ होम पेज, कि जैसे ही सर्वर आपके प्रोजेक्ट को लोड करे आपके पास एक इंडेक्स पेज आ जाएगा, एंड इट्स ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ दैट वेलकम फाइल लिस्ट टैग। ये हमने ऐड करा यहाँ पर। तो मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ। वेब प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको मिले सबसे पहले चेक करना है सर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जी बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, डिफॉल्ट डॉट एच टी एम हम्म, और डिफॉल्ट डॉट जेएसपी। तो मतलब हम इंडेक्स की जगह पे यदि यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। यहाँ तो मैं एक्स वाई जी लिख दूँ तो भी चल जाएगा, पर मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकैट अपाचे सिर्फ इंडेक्स फाइल चेक करता है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी लिख दो वो सब पिक कर लेगा, पर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ठीक है। मैं अभी कस्टमाइज में आने वाला हूँ मैं। अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो लेट सपोज वी हैव अ व्हाट यू कॉल दिस, ओके देयर इट इज। नोट कर देते हैं, नोट बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे tomcat will try to load index page dot html पेज। इसको याद रखना। तो क्या सच में ये है? तो जो भी कहा है प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं इसको। अब मैं एक्सएमएल फाइल में जा रहा हूँ, मैं इस पूरा टैग को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई वेलकम राइट नहीं है, और सब क्योंकि एक्सएमएल फाइल में चेंज किया है सर्वर डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वी हैव टू मैनुअली स्टॉप द सर्वर। तो सर्वर स्टॉप करो, फाइल सेव है, राइट क्लिक, रन एज सर्वर, नेक्स्ट फिनिश। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो इस बार वेब डॉट एक्सएमएल एम्प्टी था, पर स्टिल इंडेक्स पेज लोड हो गया। ऑल बिकॉज ऑफ कि बाय डिफॉल्ट अपाचे टॉमकैट विल ट्राई टू लोड इंडेक्स पेज। अगर पाथ में है तो जरूर उसको पिक करेगा और लोड कर देगा, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। वेलकम फाइल लिस्ट टैग तब यूज होता है जब हमें कस्टमाइज करना हो। अब आपने कहा कि भाई मुझे तो डिफॉल्ट पेज चाहिए था, मुझे ये सब नहीं पता, मैं डिफॉल्ट छोड़ो, मुझे चाहिए होम डॉट एच टी एम एल। मेरी रिक्वायरमेंट है, इंडेक्स पेज होगा ठीक है, डजेंट मैटर, पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो होम पेज चाहिए। मैंने चेंज कर दिया। अब सर्वर को स्टॉप करते हैं। तो मैंने लिख दिया वेलकम फाइल लिस्ट में होम पेज चाहिए, तो एप्लीकेशन लोड हो तो ये पेज चाहिए। क्या ये पेज अपने पास है? नहीं है। टर्मिनेट करते हैं और रन करते हैं सर्वर को। तो कॉन्फ़िगरेशन में होम डॉट एच टी एम एल, और बाय डिफॉल्ट अपाचे टॉमकैट को पता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पिक करना है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर एरर या फिर कुछ और होता है। क्या लिखा है? नॉट फाउंड। डजेंट मैटर, अपाचे यस टॉमकैट सर। को क्या चाहिए, हमारा एप्लीकेशन कह रहा है कि भाई हमारा तो होम पेज है ये, तो लोडिंग पे ये पेज चाहिए। अपाचे टॉमकैट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो ओवरराइड हो गया, तो ये टैग क्या करता है, ओवरराइड्स द डिफॉल्ट फीचर ऑफ अपाचे टॉमकैट, ठीक है। आई होप ये टैग क्लियर हो गया होगा। ऐसे जितने टैग है वो आप याद करते चलिए, आगे और टैग्स आएंगे। जितना जल्दी हो सके इन टैग्स को क्लोज करिए। वेलकम फाइल लिस्ट टैग will override the default of ओके। सो डन। ये भी एक एज अ नोट है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। ये भी डन हो गया। नेक्स्ट, अब हमको अभी ये पता है कि अगर हमने सर्वलेट बनाया है और उसकी मैपिंग कर रखी है तो हम ब्राउज़र पर जाके उसको कर देंगे। अब थिंक अबाउट इन रियल रियल वर्ल्ड, क्या आप लोग सभी साइट पे जाके आप मैनुअली ब्राउज़र पे जाके इसकी यूआरएल चेंज करते हो? नहीं करते। हमको चाहिए होते हैं हाइपर लिंक्स, नो सर। है ना। हाइपर लिंक्स पे काम करते हैं हम लोग, बटन्स पे काम करते हैं। दो यस चार सर। साइट होंगी जो हम मैनुअल टाइप करते हैं, ओके लाइक गूगल डॉट कॉम, किसी ने फ्लो में गूगल डॉट कॉम लिख दिया, पर अगर कहीं लिंक हो तो पहले उसी पे चल जाएगा, वो टाइप नहीं करेगा। तो हम बात कर रहे हैं यूज़र एफिशिएंसी, कि यूज़र कहाँ पे कंफर्टेबल है। तो जो वेबसाइट बनती हैं, वेब पेजेस, वो इसी हिसाब से बनती हैं कि यूज़र के लिए
सिंपल हो। तो ये तो हमने बना दिया, अब यूज़र थोड़ा जाके अपना चेंज करेगा कि भाई ये लो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ तब आएगा पेज, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। तो अब क्या करता हम इस होम पेज पे जो अभी तक है नहीं, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ इंडेक्स से होम, क्योंकि हम्म, एक ही लोड पेज होगा तो होम कर देते हैं। ओके होम पेज आ गया, अब चल जाएगा ये, अभी टेस्ट नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। अब मुझे चाहिए हाइपर लिंक्स। एक काम करते हैं, हाइपर लिंक्स कैसे बनता है पता है एंकर सबको? टैग। एंकर टैग से पता है ना, ठीक है। एच आर ई एफ एच आर ई एफ लगाया, और मुझे करना है लोड गूगल पेज, गूगल सर्च पेज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? www.google.com। है ना, ये लिखते हैं ना। सर्च की यस सर। स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, चेक करते हैं ये काम करता नहीं करता। तो हमने होम पेज कर दिया है, सब स्टॉप कर दिया था क्योंकि पेज का नाम चेंज किया है। फिर से करते हैं चेंज। गुड थिंग अबाउट होम एचटीएमएल पेजेस कि आपको बार बार सर्वर लोड नहीं करना, एक बार चेंज करो आपका चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेज पर। वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ नहीं चलाएंगे इसे, चलाएंगे इस ब्राउज़र पर। सर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं आई थिंक, विंडोज से। हम्म, अभी ये है, विंडो। क्लिक किया, ये क्या हुआ? हमने लिखा था इस पर कि जब एंकर टैग क्लिक हो तो गूगल का होम पेज खुले, ये लिखा था, क्यों नहीं हुआ? आई थिंक एच टी टी पी एस वगैरह भी देना पड़ेगा पूरा। अच्छा चलो ठीक है, एच टी टी पी एस, अब ठीक है। यस सर। चलो मैंने सेव कर दिया, रिलोड करोगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आया? तो यस सर। प्रोटोकॉल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है ये, अगर आप नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपेंड हो जाता है आपके प्रोजेक्ट के नाम पर। अब एक चीज़ में डिफरेंस देखो यहाँ पर, मैं एक को विदाउट प्रोटोकॉल करता हूँ, मैं सेव कर दिया और बैक करके रिलोड कर देते हैं फिर इसको। बी आर से। यस बिल्कुल, हम बी आर यूज़ करेंगे, लोड आ गया विदाउट प्रोटोकॉल। हम्म, ठीक है, तो ये विदाउट प्रोटोकॉल है। मैंने क्लिक ऑन दिस, क्या हो रहा है यहाँ पर? मनन म्यूट करिए प्लीज़। ओके, तो लिंक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, पहले आपके होस्ट का नाम, देन पोर्ट नंबर, देन एप्लीकेशन का नाम, देन जो भी आपने पास किया है। तो ये काम हुआ कब? जब प्रोटोकॉल के संग विदाउट के काम किया हमने। जब हम प्रोटोकॉल देते हैं तो रिक्वेस्ट ओवरराइड हो जाती है कि अब हमें सिर्फ इसी पे जाना है। इवन देखो, अगर समझना कैसे, माउस को होवर करो, लेफ्ट बटन में लिखा आ रहा है https://google.com। अगर मैं चेंज करके यहाँ करूँ तो लेफ्ट बॉटम पे देखिए लोकल होस्ट लोकल। 881 लिखा रहा है यस ना। सर। तो ये तरीका होता है चेक करने का, इवन रियल टाइम में बता रहा हूँ। कभी आप कोई सर्फिंग करो और कोई लिंक पे डाउट, यार लिंक कहीं मैलवेयर या कोई वायरस टाइप का ना हो, तो हमेशा उस पर होवर कर लो, क्लिक नहीं करना। तो आपको दे जाए कि उस पर एच टी टी पी एस लिखा नहीं लिखा। एच टी टी पी एस मतलब सेफ है, एच टी टी पी लिखा हुआ है तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे लिंक्स पे कभी क्लिक मत करना, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। कई बार आप गेमिंग साइट पे जाओगे तो वहाँ सब चीज़ें होती हैं। खैर, तो हमें लेकिन करना था कि हाइपरलिंक बनाकर किसी और पेज से दूसरे पेज पे जाना है। ये तो हो गया। व्हाट अबाउट आवर सर्वलेट्स? क्या इससे हम अपने सर्वलेट कॉल से कर सकते हैं? बताइए। यस हम सर। अब मैं अपने हाइपरलिंक से अपना सर्वलेट कॉल करना चाह रहा हूँ। लेट्स कॉल दिस, लोड कर देते हैं, लोड फर्स्ट सर्वलेट, और नॉट लोड, लेट्स कॉल फर्स्ट सर्वलेट। तो क्या होगा सी यूआरएल? इतना तो होगा एफएस, है ना? पर स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए इसके, देखते हैं। एचटीएमएल फाइल है, सेव करके आप अपने पेज को रिलोड करोगे तो चेंजेस आ जाएंगे। अरे बियर टैग रह गया, दो लगा दे टैग। ठीक है, हो गया। रिलोड करते हैं पेज को। अब इस पर होवर करते क्या लिखा रहा है? लोकल होस्ट 8081। पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम या फिर कॉन्टेक्स्ट नेम। कॉन्टेक्स्ट नेम इज मिसिंग इन दिस यूआरएल। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, देखो यूआरएल पर ये आ गया। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नाम मैनुअली डालना पड़ेगा। अभी तो अपने पास कोई तरीका नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वेब सर ऐप। डेट। हाँ, वेब ऐप है प्रोजेक्ट का नाम, सर्वलेट क्यों बोल रहे हो? ठीक है, वही स्लैश है लगा सर दिया। वहाँ पे। अब इसको रिलोड करते हैं। अब होवर करूंगा माउस को, अब आ गया लोकल होस्ट 881 फर्स्ट वेब ऐप स्लैश एफएस। और इसको भी साइड में खोल लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं।
कॉल फॉर सर्वलेट क्लिक करा और ये कॉल हो गया, रीडायरेक्ट हुआ इस पेज पर जो कि ब्लैंक है और यहाँ पे मैसेज आ गया। इसी तरह हम दूसरा सर्वलेट भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि अब सर्वलेट के दो तरीके हमारे पास है कॉल करने के, या तो मैनुअली हाइपरलिंक कर दो, मैनुअली यूआरएल चेंज कर दो, या फिर हाइपरलिंक क्रिएट कर दो। कॉल था सर्वलेट, सिंपल है, हाइपरलिंक देना। तो अब हमें यूआरएल चेंज करना नहीं है मैनुअली, जो कि सबसे वर्स्ट वे है। होवर किया, पाथ सही दिख रहा है, लोकल होस्ट 881, फिर फर्स्ट वेब ऐप और टीएस, क्लिक किया, ब्लैंक स्क्रीन, और यहाँ पे आ गया इनसाइड डूगेट मेथड। सो नाउ वी आर एबल टू कॉल दैट थर्ड सर्वलेट एज वेल। इस प्रोसेस में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बताइए। हमने ये सेकंड तरीका देखा सर्वलेट को कॉल करने का। कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। नो सर। अब मैं एक पेज बना रहा हूँ कॉल यूजर डॉट एचटीएमएल, ठीक है। कॉपी करा इसको मैंने, वेब कंटेंट पे गया, न्यू एंड एचटीएमएल फाइल, पेज का नाम फिनिश। यहाँ पर मैं एक टैग बनाऊंगा, फॉर्म टैग। आइडिया ये है, पहले आइडिया से समझाता हूँ फिर इस पे काम करते हैं। द थिंग इज ओके, पहले काम ये कर देते हैं क्योंकि मैंने ये इसमें मेंशन नहीं कर रहा कि हाइपरलिंक्स बना रखे हैं मैंने। हाइपरलिंक्स भी मेंशन कर देता हूँ। कॉलिंग तो यहाँ पर जितने पेजेस हैं वो कॉल हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, पर ये तरीका बता दिया कि कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे मैटर करेगा आपका ये पाथ, आपको प्रोजेक्ट नेम प्लस सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न यहाँ देना पड़ेगा, तब काम करेगा। और फिर से इस पे मैपिंग दिखा देते हैं सर्वलेट की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो पहले फर्स्ट सर्वलेट पे ये है, दूसरे पे थर्ड सर्वलेट है। सिफानी टू कलर, येलो कलर इसके लिए, ब्राउन कलर थर्ड सर्वलेट के लिए। सो ये करने पर ये कॉल हो जाएंगे। प्रैक्टिकली हमने देख लिया, तो ये भी हो गया ख़त्म। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट आइडिया। मैंने लिखा एक कॉल यूजर एचटीएमएल बना रहा हूँ मैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाएंगे, एचटीएमएल पेज का फॉर्म, ठीक है। एक यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र नेम, उसके सामने एक सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड बनाऊँगा, बहुत बेसिक सा, और नीचे लिखूँगा कॉल यूज़र। ये मेरा एक बटन होगा, ठीक है। और जब ये बटन पे क्लिक हो, ठीक है गाइस, लिसन केयरफुली, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस कॉल यूज़र बटन, दिस शुड कॉल अ सर्वलेट, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूज़र कॉल यूज़र सर्वलेट, वी विल फॉलो द पैटर्न। सर्वलेट आखिर में होना चाहिए, कैपिटल C डॉट जावा। और इस पे जो भी कोड लिखोगे, दे शुड प्रिंट द यूज़र नेम। क्या करना है ये समझ में आ गया, क्या अप्रोच क्या है वो डिफरेंट थिंग है, पर हम करने क्या वाले समझ में आ गया। किसी को डाउट इस पे? हम एक HTML पेज बनाएंगे और एक जावा पेज बनाएंगे, इसका नाम होगा दिस वन, एंड इसका नाम होगा कॉल यू सर्वलेट। ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको बाहर निकाल देते हैं ये। सो ये आइडिया है कि जब ये कॉल हो बटन पर, इस पर चल जाएगी। ये हम करने वाले हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अभी बस आपको मैं 2 पेजेस बना दे रहा हूँ। कॉलिंग आपको अगर खुद से कर सकते हो दैट्स गुड एंड फाइन, कि ट्राई करिए कि कैसे पॉसिबल है। मैं अभी दोनों पेज बना देता हूँ और आपको टास्क दे रहा हूँ कि इसका कि कैसे करना है। सब मैं काम कर दूँगा, बस एक लिंक वाला काम छोड़ दूंगा कि वो कैसे करना है। तो यूज़र पे क्या करना है, एक फॉर्म टैग बनाएंगे, यहाँ पर लिखूँगा
हमने क्या लिखा यहाँ पर, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम कॉलन लगा देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र नेम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, सबमिट बटन, सबमिट। अरे बटन लगाएंगे। वैसे इसमें और भी ऑप्शन होते सर हैं, यस सर। वो भी दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पे एंकर टैग्स तो होते ही हैं, फॉर्म के रिलेटेड। बटन होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका बताओ क्या लिखेंगे, एनीवन हु नोज? एस्टिमेट काम कर रखा है आप लोगों ने, थोड़ा तो पढ़ा मुझे पता है, बताइए। यस सर। सर टाइप हम्म, सबमिट। सबमिट। यहाँ पे आ नहीं है सबमिट, सिर्फ सब है, बटन तो आ नहीं रहा, सर बताओ। बटन लिख के उसके मतलब ब्रैकेट सर के बीच में बटन सबमिट लिखकर लिखेंगे सबमिट लिख तभी दीजिए। बटन लिख तभी हो के जाएगा बटन। यहाँ टाइप वहाँ पे। लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सबमिट, ठीक है। हाँ। कंफ्यूज है और आपने। अंदर भी यहाँ पे कन भी सबमिट का। अरे बस एक ही सबमिट अच्छा बहुत है। कॉल। हाँ, कॉल यूज़र। बटन है उसका टाइप बता रहा है सबमिट। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रीसेट और बटन टाइप और सेव। सर नो नीड, सर हाँ, नीड ही नहीं है टाइप की, टाइप लिखने की। अगर इनपुट यूज करते तो टाइप यूज कर सकते हैं। अपन बटन लिख लिया, हम्म। कॉलर यूजर कर लिए तो बटन का वर्क हो जाएगा। देखो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम एसएफएस कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है सो दैट्स गुड, आप अपने हिसाब से उस पेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी अपना आइडिया है कि यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक सबमिट बटन बनाना है, तो इसलिए एक तरीका ये है कि सबमिट बटन टाइप लगा दो यहाँ पर। इसका इम्पैक्ट आगे पड़ेगा, और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो भी एक तरीका है, मल्टीपल वेज है ना, तो हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं कि टाइप सबमिट लगा देते हैं। और इसको मैं भी ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, इसमें इतना काम करना करना है अपने को। और अब पैकेज पे जाते हैं और एक सर्वलेट भी बनाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कॉल यूज़र। इफ़ यू गाइस नोटिस कि मैंने जो भी दोनों पेज बनाए वो कनेक्टेड है। अगर कोई भी इस पेज को ओपन करेगा जिसने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो वो समझेगा कि ओके यहाँ पर तो ये काम कर रखा हुआ है। अरे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं अभी बताता हूँ ये चीज़। तो अगर आपका पेज का नाम कॉल यूज़र है और कनेक्ट करना चाह रहे हो किसी सर्वलेट से, तो मेक श्योर कि वो नाम उनके सेम रहे। तो अभी तक हमने जो तरीका देखा था सर्वलेट क्रिएट करने का, वो जावा के थ्रू था कि एक जावा क्लास क्रिएट करो, इम्प्लीमेंट करो इंटरफेस या एक्सटेंड करो किसी क्लास को। एक सबसे बेस्ट तरीका है जो इक्लिप्स देता है, वो बोलता है कि सर्वलेट ही बनाना है, तो वाई यू गोइंग फॉर दिस मच। मैं एक ऑप्शन देता हूँ, तो राइट क्लिक का पैकेज पे न्यू पे गया और यहाँ पे एक सर्वलेट। ऑप्शन है सर्वलेट का, ठीक है। इस पर क्लिक करा। अब अगर आप सही जगह क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल आ चुकी होगी। प्रोजेक्ट का नाम, आपका सोर्स फोल्डर, पैकेज का नाम, इसकी सुपर क्लास तक आ चुकी होगी। देखो बस आपको अपनी क्लास का नाम देना है, तो मेरी क्लास का नाम है कॉल यूज़र सर्वलेट। यूज़र का नाम छोटा हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने अपनी खुद की क्लास बनाई है सर्वलेट की। बाकी डिटेल अपने आप फिल आ जाएगी अगर आप सही पैकेज पर क्लिक करोगे, वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करना है, दिस इज़ फाइन, देन अगेन नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सा मेथड चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल डू गेट और फिनिश। ये बन के आ गया आपका सर्वर। यहाँ पे बहुत सारा डेटा होगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सारे डेटा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो अब तक नहीं था, जैसे कि क्लास के ऊपर क्या था हटा दिया इसको, ये कमेंट हटा दो, इसको भी हटा दो, और ख़त्म काम आपका। और ये चीज़ भी हटा दो, ये सब हम बाद में देखेंगे जब कल पढ़ेंगे इसको। और मेथड को मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो जितने भी एक्स्ट्रा डिटेल्स थी मैंने सब हटा दी, ताकि हमारा एग्जाम्पल साफ सुथरा लगे, जो हमने अब तक करते रहे वो दिखे। तो वही क्लास बन के आ गई, कोई खुद से हमें क्लास नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंट द यूज़र नेम कमिंग फ्रॉम द कॉल यूज़र डॉट HTML। तो ये आप लोगों का टास्क है। इतना तो मैंने करके दे दिया, आप लोगों से एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे और यूज़र नेम प्रिंट करना है। कहाँ पर, कंसोल पे, इन कंसोल। वेब पेज पे तो हम बाद में, वेब पेज पे उसके बाद प्रिंट करेंगे कि वेब पेज है, HTML फाइल आएगा और ये कॉल कर देगा। और इस पेज का हाइपरलिंक ऑलरेडी हमने होम पेज बना कर रखा हुआ है। तो अगर चेक करते हैं, एक बार देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। सो राइट क्लिक, रन एज सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रिसेट करना है।
ओके वैसे सब क्लोज करना चाहिए था, पर ठीक है, क्योंकि दो नई फाइल्स बनाई है। एक चीज़ स्टिल मिसिंग है, सर्वलेट का मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करके रखा हुआ, वो भी कर देते हैं एक बार लोड हो जाए। ओके, ये प्रिंट यूज़र नेम आ गया, क्लिक करने पर ये पेज खुल के आ गया। तो ज़्यादा उसमें चमकाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर डूइंग अ बैक एंड जॉब हियर। बैक एंड का डेवलपर कैसे तो काम सर करता है। इसके बाद हम्म, सर जो होमवर्क है उसमें अगर नाम कैसे प्रिंट करना है, मतलब ये जो नाम डालेंगे उसे प्रिंट करना है? जो नाम आएगा कॉल करोगे, आपका सर्वलेट कॉल होगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा नाम, यूज़र नेम ओके इज़ सर। दिस वन। ठीक है, बटन क्लिक होने पर सर्वलेट का कॉल होना चाहिए आपका। इस प्रोजेक्ट में चीज़ मिसिंग है मैपिंग की, वो कर देता हूँ। तो कोड आपको मैं ऑलरेडी डिटेल शेयर करता हूँ, एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज आपका मर्जी है, नया प्रोजेक्ट बना लो, नया क्लास बना लो, पर यही होना चाहिए, कॉल यूज़र सर्वलेट, कॉपी पेस्ट, मैं इसका नाम ही कॉल यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, हाउ हाइपरलिंक सही आ रहा है, दैट मीन्स करेक्ट मैपिंग है। ठीक है, तो सर्वलेट की मैपिंग भी हो गई है। अब आप लोग चेक करिए कि डेटा ट्रांसफ़र HTML से सर्वलेट पे कैसे आता है। सिंपल गूगल पे मारिए सर्च, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें ट्राई करिए, प्लस एक होमवर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तब हम इस स्क्रीन पे वापस आएंगे और इनके जो यूसेज है वो समझेंगे। अभी इसको मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया, कल वापस इसको स्क्रीन पकड़ेंगे। तो इसको करते हैं सेव 6 इमेज पर। और होमवर्क क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। तो दूसरा, ये जो टास्क उसको कंप्लीट करना है, प्रिंट द, ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये करके देखिए, ट्राई करिए, हो जाएगा। काफ़ी सिंपल काम है, थोड़े से मेथड्स और क्लास पता होना चाहिए, इससे हो जाएगा। दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि मैं 4 इंटरफेस बता रहा हूँ, उनके बारे में पढ़ के आइए। सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रेस्पॉन्स, ठीक है, ये 4 इंटरफेसेस हैं। उसके बाद HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, रीड अबाउट बिलो इंटरफेसेस। ठीक है गाइज, तो 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, डिफरेंस पता करना है इनके बारे में। नेट पे मतलब डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, पता करिए क्या होते हैं, प्रिंट करिए, ये कोडिंग का काम है ये। और जो दूसरा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको ये जो 4 इंटरफेसेस हैं इनके बारे में पता लगाना है। तो सिंपल तरीका है, डॉक्यूमेंट ओपन करिए, जैसे कि एक सजेशन देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पे है कहीं पर सर्वलेट, इसमें शायद मिल जाए। सर्वलेट रिक्वेस्ट जैसे ये, public interface servlet request defines an object to provide client request information to a client, so to a servlet। अगर ये लाइन गाइस आपको समझ में आ गई तो आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इट इज़ अबाउट सर्वलेट रिक्वेस्ट, साफ साफ कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन सर्वलेट तक पहुंचाने का काम करता है ये। तो इसको थोड़ा सा और देखिए क्या होता है। इसी तरह 2-4 लाइन जो इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी इस आर्टिकल पे, जो ऑरेकल के साइट है, इन्होंने बहुत 2-3 लाइन में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ऐसे ही आप और पढ़ेंगे तो और चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इन चारों इंटरफेस के बारे में पढ़ के आइएगा, स्टार्टिंग में 10-15 मिनट हम पहले इस पर डिस्कस करेंगे, तब आगे काम करेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी अबाउट द होमवर्क प्लीज़ आस्क, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। नो क्वेश्चन। मनन, ऑल क्लियर, टास्क क्या है? माननीय सर। ओके, ठीक है, तो इसको सभी को ये करके आना है, आप तीनों को ट्राई करिएगा। और कल मिलते हैं फिर, अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो। ओके गाइस, चलो सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके।